Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about pelvic inflammatory disease, which is related to female reproductive system. So let's discuss about pelvic inflammatory disease. First of all, definition of pelvic inflammatory disease. Pelvic inflammatory disease is an infection of female reproductive organs that may involve the fallopian tube, ovaries, uterus or peritoneum. It is a primary preventable cause of infertility in a woman. pelvic inflammatory disease female reproductive organs में infection को बताता है. Female reproductive organs are fallopian tubes, ovaries, uterus और peritoneum. इन organs में infection हो जाता है उसे pelvic inflammatory disease कहते हैं. इन organs में infection को prevent करके infertility को woman में prevent किया जा सकता है. This is the definition of pelvic inflammatory disease. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन को pelvic inflammatory disease कहते हैं. Now we will discuss about etiology which can cause pelvic inflammatory disease. First is the causative agents include Neisseria gonorrhea can cause pelvic inflammatory disease. gram-negative bacteria, chlamydia, trichomatis, streptococci इनकी वजह से pelvic inflammatory disease हो सकता है. Predisposing factor include multiple sexual partners. who have a multiple sexual partners उनको रिस्क रहता है pelvic inflammatory disease होने का. यूज़ ऑफ IUD मीन्स इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो यूज़ करते हैं उनको pelvic inflammatory disease हो सकता है. सर्वाइकल इन्फेक्शन, STDs मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज. सेक्सुअली एक्टिव टीनेजर्स को रिस्क रहता है pelvic inflammatory disease होने का. अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी अर्ली ऑनसेट होने की वजह से pelvic inflammatory disease हो सकता है. सिजेरियन सेक्शन, जिनका सिजेरियन सेक्शन होता है उनको भी रिस्क रहता है pelvic inflammatory disease होने का. These are the etiologies which can cause pelvic inflammatory disease. Now we will discuss about clinical manifestations in case of a pelvic inflammatory disease. First is a pelvic pain. patient को pelvic pain होगा, pelvic area में pain होगा. Second one is a abdominal vaginal discharge that is a yellow or green in color or unusual odor. वेजाइनल डिस्चार्ज होगा पेशेंट को जो कि येलो या ग्रीन कलर का होगा और उसमें अनयूजुअल ऑर्डर भी प्रेजेंट होगा. पेन इन लोअर एब्डोमेन एरिया में पेन होगा पेशेंट को. सर्वाइकल डिस्चार्ज, म्यूकोपुरिनेंट डिस्चार्ज होगा पेशेंट को. इरेगुलर ब्लीडिंग होगी. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, नोशिया, वॉमिटिंग एंड एक्यूट एब्डोमेन देखने को मिलेगा पेशेंट में. पेन ड्यूरिंग सेक्स, फीवर होगा पेशेंट को. सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस होगा. यूरिनरी सिम्टम्स फॉर एग्जांपल डिसयूरिया होगा मीन्स की पेनफुल और डिफिकल्टी इन यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी. ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को pelvic inflammatory disease की कंडीशन में देखने को मिलेगा. Now we will discuss about diagnostic evaluation to diagnose pelvic inflammatory disease. फर्स्ट इज अ कल्चर टेस्ट करेंगे, कल्चर करेंगे. सेकेंड इज अ एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे. लैप्रोस्कोपी करेंगे. लैप्रोस्कोपी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें एब्डोमेन इंसिजन करके एब्डोमेन एंड पेल्विक ऑर्गन का एग्जामिनेशन किया जाता है. USG मीन्स अल्ट्रासाउंड करेंगे पेशेंट का. CBC ब्लड टेस्ट करेंगे. इंडो सर्वाइकल DNA टेस्टिंग करेंगे. दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डायग्नोज pelvic inflammatory disease. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लिकेशंस. अगर pelvic inflammatory disease को ट्रीट नहीं किया गया तो फिर पेशेंट में एब्सेस हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है और इनफर्टिलिटी हो सकती है. Now we will discuss about management to manage pelvic inflammatory disease. First of all, medical management. Medical management में हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करेंगे. कॉम्बिनेशंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन्स एंड सेफेलोस्पोरिन्स orally or parenterally depending on a patient condition such as पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ओरली और पैरेंटली पेशेंट को टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स एडमिनिस्टर करेंगे. सिफोटेन 2 ग्राम IV एवरी 12 आवर्स. सिफोटेन 2 ग्राम IV एवरी 12 आवर्स में पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे. क्लिंडामाइसिन 900 mg IV एवरी 8 आवर्स में पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे. सेफ्ट्रिएक्सोन 250 mg IM वंस डेली प्लस डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ओरली पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे. ओरल थेरेपी डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ओरली BD. पेशेंट को डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ओरली BD देंगे. मेट्रोनिडाजोल 400 mg ओरली पेशेंट को BD प्रोवाइड करेंगे. दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट टू मैनेज
pelvic inflammatory disease. Now we will discuss about nursing management to manage pelvic inflammatory disease. First is instruct the patient to warm the abdomen to reduce spasmodic contractions of a uterus. पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपने abdomen को वार्म प्रोवाइड करे, उसकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस होगा. सेकेंड वन इज मसाज द एब्डोमिनल एरिया दैट फील्स अ पेन फॉर रिड्यूसिंग पेन. पेशेंट को बोलना है कि वो मसाज करे एब्डोमिनल एरिया में, इससे पेन से रिलीफ मिलेगा पेशेंट को. Third one is administer provide non-steroidal anti-inflammatory drugs to reduce pain and uterine contraction. पेशेंट को बोलना है, पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. इसकी वजह से पेन एंड कॉन्ट्रैक्शन से पेशेंट को रिलीफ मिलेगा. Fourth one is monitor the patient's urine output, hematuria, cloudiness and odor. पेशेंट का यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है. हेमाचूरिया का मीनिंग होता है ब्लड इन यूरिन, क्लाउडीनेस और ऑर्डर मॉनिटर करना है. ऑब्जर्व फॉर चेंजेस इन एलिमिनेशन पैटर्न में चेंजेस को ऑब्जर्व करना है. फॉर एग्जांपल डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी आर यूजुअली इंडिकेटिव ऑफ यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है. एलिमिनेशन पैटर्न को ऑब्जर्व करना, अगर ये सारे पेशेंट सिम्टम पेशेंट के अंदर शो हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, दैट मीन्स पेशेंट को यूटीआई है, मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. मॉनिटर टेम्परेचर एंड डब्ल्यूबीसी काउंट. टेम्परेचर को मॉनिटर करना है, डब्ल्यूबीसी को मॉनिटर करना है. प्रमोट गुड हैंड वॉशिंग टेक्निक बाय पेशेंट एंड स्टाफ टू रिड्यूस रिस्क ऑफ अ क्रॉस इन्फेक्शन. पेशेंट को हैंड वॉशिंग करने के लिए बोलना है, इसकी वजह से क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होगा. एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज अ प्रिस्क्राइब्ड. जिस तरह फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया होगा पेशेंट को एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करना है. इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिपोर्ट एनी वर्सेनिंग इन पेन, फीवर और चिल्स. अगर पेन, फीवर और चिल्स की कंडीशन वर्स हो रही है तो पेशेंट को बोलना है कि वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करे. टीच एंड इंस्ट्रक्ट प्रिवेंट इन्फेक्शन थ्रू द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट हाइजीन मेजर्स एट अ होम. पेशेंट को बोलना है कि वो अपनी हाइजीन को मेंटेन करके इन्फेक्शन से बच सकता है. प्रोवाइड measures to take before bedtime to assist with sleep. For example, back massage, quiet time to allow the mind to slow down, and carbohydrates such as crackers. Carbohydrates cause release of serotonin neurotransmitter which induce sleep. पेशेंट को बोलना है कि जब भी वो स्लीप के लिए बेड में जा रहा है तो उस थोड़ी देर पहले बैक मसाज करे, और या कार्बोहाइड्रेट जैसे कि क्रैकर्स ले सकता है. कार्बोहाइड्रेट सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से नींद आती है. प्रोवाइड पेन किलर शॉर्टली बिफोर बेड टाइम इफ पेशेंट फील पेन. अगर पेशेंट को पेन फील होता है तो बेड टाइम से पहले पेशेंट को पेन किलर प्रोवाइड करना है. कीप इन्वायरमेंट क्वाइट. पेशेंट को शांत इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है. इंक्रेज फॉर एक्टिविटीज़ इन अ डे टाइम में एक्टिविटीज़ को इंकरेज करना है. These are the all about pelvic inflammatory disease. Thank you so much. If you like my video then like, subscribe and share my channel.